Hello student, good morning. Today we will study remain part of this chapter. The chapter is 3 question. In the first part we had studied that there was a king and one day the king had 3 questions in his mind and he also thought that if he will get the answer he will never fail in his life. And what were the 3 questions? And what were the 3 questions? What is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? 3 questions came in his mind. And also he sent the magician को भेजा, अगर कोई इसका जवाब दे देगा द किंग विल गिव हिम अ बिग रिवॉर्ड, उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा. Many wise men came and answered the question differently, so the king was not satisfied with the answer. Hermit was living in a wood. Wood means small forest and hermit means intelligent man. So king decided to go to hermit and get the answer from him. When he went there, he went in ordinary cloth. राजा बनकर जाएगा तो शायद उसका जवाब ना मिले, एंड दैट इज़ वाई ही वेंट देयर इन एन ऑर्डिनरी क्लोथ. और जो गार्ड था, जो हॉर्स था, उसको वो दूर एक पेड़ के नीचे उसको खड़ा करके वो हर्मिट से मिलने आते हैं. दिस टाइम हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड and he was old man. He was getting tired. So king asked him 3 questions, but hermit did not reply. तो उसको राजा ने सोचा कि हेल्प कर देते हैं. तो राजा ने कहा कि लेट मी गिव द स्पेड, आई हैव वर्क फॉर यू. hermit had given the spade to the king. King dug the ground. After some time, he again asked the 3 questions. Hermit did not reply. In the evening, the king third time asked him 3 questions answers. But again, hermit did not reply. King finally said that if he will not get the answer, he will return to his home. कि अगर उसका जवाब नहीं मिलेंगे तो वो अपने घर पर वापस चले जाएंगे. फिर भी हर्मिट उसको जवाब नहीं देते और इस वक्त वो कहते कि देखिए हमारे सामने कोई दौड़ा चला आ रहा है. तो यहाँ तक हम पहुँचे थे. नाउ लेट्स स्टडी द फर्दर चैप्टर. The king turned round and saw a bearded man running towards them. उसने देखा कि कोई bearded man उसकी तरफ दौड़ा हुआ चला आ रहा था. His hands were placed against his stomach. और वो bearded man के हाथ उसके पेट की तरफ दबाए हुए थे. From which blood was flowing. The king also saw that from the stomach the blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. That man became unconscious and fell on the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in the stomach. There was a big wound in his stomach, and the king and hermit helped that man. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. Here king helped that man. अपने हैंडकरचिप से वो घाव को उसका जो ब्लड है वो ज़्यादा ना बहे उसके लिए हैंडकरचिप से आप उसको कवर कर देते. बट नॉट येट द ब्लड फ्लोइंग स्टॉप्ड. वो अभी हुआ नहीं, इसलिए फिर से वो रीड्रेस करता है और उसको ब्लीडिंग स्टॉप हो तब तक वो कोशिश करते हैं. The man felt better and asked for something to drink. That man, now he was no more unconscious. That man demanded for water. The king brought fresh water and gave it to him, as man needed and demanded water. So king brought it for him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. With the help of hermit, king and hermit brought this man in the hut and lay him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. वहाँ पर वो शांति से पड़ा रहा. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. Also king was very tired. वो भी थक गया था, इसीलिए वो भी सो जाता है. When he awoke,
It was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. And that man also awoke. वो जो वाउंडेड मैन था वो जाग जाता है और उसको याद आता है कि वो कहाँ पर है. And he remembered the incident happened with him. Forgive me, said the bearded man in weak voice when he saw that the king was awake. उसने देखा कि जब राजा जो है awake मतलब जग गया है तब कहता है कि forgive me. Forgive means माफ़ कर देना. वो कहता है कि उसको माफ़ कर दे. I do not know you and have nothing to forgive for you, said the king. King said that he didn't know who he is and for what forgiving him. You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. That man said that he was his enemy and he wanted to take the revenge. वो बदला लेना चाहता था. He took the sword. उसने कसम ले ली थी. He will take a revenge. Revenge means बदला लेना. Why he wanted to take the revenge? तो एक बार राजा ने उसके भाई को मृत्युदंड दिया था और उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी और उसी दिन से उसने प्रण लिया था कि वो राजा को मार देगा. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. वो कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था but I could not kill you because you didn't return. कि तुम तो वापस आए नहीं. But when he came out from the hiding place, अपने छुपे हुए जगह से निकला तब सोल्जर ने उसको देख लिया और उसको पहचान लिया कि ये तो उसका राजा का दुश्मन है. एंड दैट इज़ वाई राजा के सोल्जर ने उसको इंजर्ड कर दिया, वाउंडेड कर दिया. आई escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. मैं वहाँ से तो भाग आया, आपके सोल्जर के वहाँ से तो भाग आया. अगर मैं मर जाता अगर आपने मुझे मेरे ड्रेस जो वाउंड है उसको ड्रेस्ड नहीं किया होता. ड्रेस्ड मतलब घाव को दवाई वगैरह लगाना. आई विस्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैंने तो आपको मारना चाहा बट आपने मुझे बचा लिया. नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. फॉरगिव मी, ही सेड दैट एज he has the life. अब उसके पास लाइफ है because the king saved his life. So he said that he will serve to him. वो उसकी पूरी ज़िंदगी भर सेवा करेगा. And he will tell his sons to do the same thing. वो कहेगा कि उसके बच्चों को भी आपकी सेवा में मैं रखूँगा. Forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with with his enemy so easily and to have won him over as a friend. अब राजा भी खुश हो गया. He also became happy as he made the peace with the enemy. उसने दुश्मन के साथ शांति स्थापित की. That is why he was happy. Now he was no that enemy but he was his friend. He not only forgive him but said, I would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. He said that कि मैं सिर्फ उसने उसको सिर्फ माफ़ तो नहीं किया बट एक डॉक्टर को स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा. उसकी प्रॉपर्टी जो पहले ले ली थी वो भी वापस दे दी. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. And here he came out from the hut and he wanted to meet hermit, and that is why he was looking for him. Before going away, he wished once more to get answers to his question. He wanted to leave the hut, he wanted to leave the forest, but before that he wanted the answer of his 3 questions. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before, and the hermit was sowing
वो जो सीड्स है उसको बो रहा था, जो अगले दिन डिगिंग किया था. द किंग वेंट अप टू द hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." He said that I'm begging. मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे 3 आंसर के जवाब आप दे दीजिए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा. वाइज मैन, इंटेलिजेंट मैन. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. He said that the king had got his answers, but when he was talking, he was doing his work. He did not leave his work. वो काम करते करते बोला कि आपको तो 3 आपके आंसर आपको ऑलरेडी मिल गए. How have I been answered? What do you mean? King said that. Here king was amazed. He was puzzled कि मुझे आंसर मिल गए, किस तरह से मिले? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weaknesses yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर कल आपने मुझ पर दया नहीं आई होती, अगर pitied मतलब दया आना, वीकनेसेस मतलब कमजोरी, अगर मेरी कमजोरी पर आपको दया नहीं आई होती तो आप यहाँ से चले गए होते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और वो इंसान आप पर अटैक करता, आपका जो एनिमी है वो आप पर अटैक करता. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो पहले आंसर का क्वेश्चन क्या था? जब वो बेड को डिगिंग कर रहा था वही इम्पोर्टेंट टाइम था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड सो डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और उस वक्त आपको मुझ पर दया आई. यू पीटीड ऑन मी, सो आई वॉज द इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर यू. और आपका काम क्या था? डिगिंग करना. तो समझ में आ गया टाइम क्या था जब वो डिगिंग कर रहा था. इम्पोर्टेंट पर्सन थे वो हर्मिट और उसका काम उस वक्त था डिगिंग करना. तो ऑलरेडी 3 के आंसर मिल गए. आफ्टरवर्ड उसके बाद भी हर्मिट कहते व्हेन द मैन ran to us, जब वो इंसान हमारे पास दौड़ कर आया. द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू. तो दूसरी बार भी ऐसा होता है कि वेन दैट मैन, द इंजर्ड मैन, द वाउंडेड मैन केम टू अस, और हमने उसका इलाज किया. तो जब हमने इलाज किया तो वो टाइम इम्पोर्टेंट था. अगर हमने इलाज ना किया होता तो वो इंसान मर जाता विदाउट एस्टेब्लिशिंग द पीस बिटवीन यू. आप दोनों के बीच में शांति स्थापित नहीं हुई होती और वो मर जाता. तो इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि आपने उसकी सेवा की. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो उसका ड्रेसअप करना. उस वक्त इम्पोर्टेंट इंसान था वो बियर्डेड मैन, और आपने उसकी जो इलाज किया वो आपका इम्पोर्टेंट बिजनेस था. सो इन दिस वे द किंग गोट हिज 3 क्वेश्चंस आंसर्स. उसके 3 क्वेश्चन के आंसर उसको मिल गए. Remember then, there is only one time that is important and that time is now. Now मतलब अभी. हमारे लिए जो मोमेंट आती है वो टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. वही एक समय होता है कि हम उसमें हमारा एक्ट मतलब काम कर सकते हैं. ना तो हम पास्ट में काम कर सकते हैं ना तो फ्यूचर में काम कर सकते हैं. नाउ एट प्रेजेंट हमारे पास जो अभी का समय है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसमें हमारे पास पावर होता है कुछ करने का. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट. और कौन सा इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है? जिस पर्टिकुलर मोमेंट में आपके साथ जो इंसान है वो आपके लिए उस वक्त के लिए इम्पोर्टेंट होता है. फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. हमको पता नहीं है कि फ्यूचर में हम क्या होगा हमारे साथ और हम किससे मिलेंगे. इसीलिए जो पर्टिकुलर मोमेंट पर जो पर्सन है वो पर्सन इम्पोर्टेंट है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट द पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द
दैट पर्पज़ ऑन अलोन, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम है वो है दूसरों की भलाई करना, पर्सन गुड, कि किसी इंसान का भला हो, और वही पर्पज़ के लिए भगवान ने हमको इस अर्थ पर भेजा है। स्टूडेंट, दिस लेसन गिव्स अस अ good moral whenever you are attending, suppose you are attending द इंग्लिश पीरियड, आपका इंग्लिश पीरियड अटेंड कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर मोमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, और उस वक्त इम्पोर्टेंट पर्सन होता है आपके टीचर। जैसे कि इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश वो उस वक्त आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइम होगा, और इंग्लिश टीचर आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और जो वर्क करवा रहे हैं वो वर्क होगा आपका बिजनेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, क्योंकि इंग्लिश के पीरियड में मैथ्स का करोगे तो इंग्लिश का छूट जाएगा। इसीलिए जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो पर्सन हो आपके साथ और वो जो काम करवाते हो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इन द सेम वे, सपोज़ के मैथमेटिक्स का पीरियड है तो वो टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, मैथमेटिक्स के टीचर इम्पोर्टेंट होते हैं, और टीचर जो करवा रहे होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए लीव इन द मोमेंट, हर कोई मोमेंट को आप उस मोमेंट में रहो, उस इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ रहो, एंड एक्ट गुड, और अच्छा काम करो, और वही पर्पज़ के लिए हम इस धरती में आए हैं। और स्टूडेंट, जो वर्ड मीनिंग है वो आप क्लास वर्क में लिखेंगे, और वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपको आपकी होमवर्क बुक में करने हैं। थैंक यू।